بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم رب سلم على رسول الله رب سلم على رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله بھیجو اے رب میرے درود و سلام بھیجو اے رب میرے درود و سلام اپنے پیارے نبی پر بھیجو دام اپنے پیارے نبی پر بھیجو دام اس نبی پر رو سلام اس نبی پر رو سلام پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام پہنچے ہر پل میں 100,000 سلام کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ اے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پورا مجموعہ آواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کا 2-3 بند ملے جاپ میں محفوظ جس کے دل میں گئے
وہ چودھوی کا چاند بھی شرما کے رہ گیا، وہ چودھوی کا چاند بھی شرما کے رہ گیا، وہ چودھوی کا چاند بھی، وہ چودھوی کا چاند بھی شرما کے رہ گیا، وہ چودھوی کا چاند بھی شرما کے رہ گیا، جس بات دیکھی موہنی صورت رسول کی، جس بات دیکھی موہنی صورت رسول کی، جس بات دیکھی موہنی، اور خوبصورت نظام میں کہ سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لاحد نے، سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لاحد نے، سر کو کٹا کے یہ کہا، سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لال نے، سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لال نے، سر کو کٹا کے یہ کہا کہ سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لال نے، سر کو کٹا کے یہ کہا زہرا کے لال نے، بدلے میں اس کے بخش دے امت رسول کی، بدلے میں اس کے بخش دے امت رسول کی، بدلے میں اس کے بخش دے، اور مطلب ہے تم سے کیا بھلا اے نجدیو سنو، مطلب ہے تم سے کیا بھلا دیوبندیو سنو، کہ مطلب ہے تم سے کیا بھلا اے نجدیو سنو، مطلب ہے تم سے کیا بھلا دیوبندیو سنو، مطلب ہے تم سے کیا بھلا، کہ مطلب ہے تم سے کیا بھلا اے نجدیو سنو، ہم گئے رسول پاک کے، ہم گئے رسول پاک کے جنت رسول کی، ہم گئے رسول پاک کے جنت رسول کی، ہم گئے رسول پاک کے، اور یہ شعر ابھی نظم میں کہ میری دلی ہی دعا کہ یہ مولا قبول ہو، میری دلی ہی دعا ہے یہ مولا قبول ہو، کہ میری دلی ہی دعا ہے یہ، میری دلی ہی دعا ہے یہ مولا قبول
جہاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اچھے انداز کا مالک، بہتر کلام عزیز غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر رہے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی نزاکت ہے، وقت کی قلت ہے، وقت کی تلوار ہمارے گردنوں پہ ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اہل سنت، مقرر اہل سنت، خطیب حضرت عزیز، آج کے خصوصی خطیب برادر اکبر فیضان حاجی محمد ابراہیم رضوی، فیضان حاجی نور شاہ، حضرت علامہ و مولانا حسنین رضا صاحب قبلہ چمپارنی، چھاونی پڑگونا کی سرزمین سے آپ کے پیار محبت میں بلکہ پوری خطابت کا لبادہ وغیر ہوئے ممبر پاک مصطفیٰ پہ جلوہ گر بڑی جلدی سے آپ مخاطب ہوں گے، جن کا موضوع ہے حضرت وہاب فرزندان علی و حضرت قاسم و حضرت عباس کی شہادت۔ یقیناً آپ ایک عالم نبیل فاضل جلیل سے آپ کو سماعت کریں گے۔ آپ کا محبوب ادارہ جامعہ رضویہ شمس العلوم سے پڑھ کے آج بھارت میں بولنے والا خطیب کیا کرے گا؟ ہلو 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 میں بتا رہا ہوں آپ کو پورے بھارت میں اس جامعہ رضویہ شمس العلوم آپ کے محبوب ادارے سے پڑھ گئے۔ آج پورانچل کے ایک ایک جلسے کی کامیابی کے بننے والا خطیب
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीदियों की हिमायत तू कर रहा है मगर, यजीदियों की हिमायत तू कर रहा है मगर, कलम में दम है तो लिख हुसैन हार गए। कलम में दम है तो लिख हुसैन हार गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया खुसूसी खतीब शाह खताबत हजरतुल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रज़ा साहब किबला चंपागली छावनी पड़ेौना की सरजमी से आपके त्याग मोहब्बत में मेंबर पाक मुस्तफा पे पूरी आलमाना शान में खताबत के लबादा होने हुए आपसे खतीब खिताब करने के लिए तैयार है, जिनका मौजू मैंने आपको बता दिया है। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजमा भी बहुत अच्छा होगा, तादाद भी बढ़ जाएगी। इसलिए वक्त पे मेन खतीब को बिठा देना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जरा एक मरतबा बेदारी का सबूत दीजिए। दोनों हाथों को सदाओं में लगाते हुए कहिए या हुसैन। और दोनों आवाज से कहे या हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आपने देखा होगा कि चांद की पहली तारीख से लेके आज तक इलाके के तमाम तलबा अइम्मा ने खूब मेहनतें की और हमारे जमात के तमाम तर साथियों ने आपके दरवाजे दरवाजे तक जाके फिक्र शोदाए करबला नौरोजा को कामयाब करने में मुकम्मल रोल निभाने की कोशिश की है। मैं आपसे एक गुजारिश अदब के साथ करूंगा कि कल आने वाली शब जो होगी और इसे इब्राहिमी की होगी, वह शब जो मुजाहिद सुन्नियत हो, गाजिए जमा हो, पानिये जामिया रजविया शमसुल उलूम वह जूनियर हाई स्कूल व जामे मस्जिद उनकी यानी हाजी मोहम्मद इब्राहिम गदबी अलैहि रहमतुल्लाह शाने की कल उर्स अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जामिया के शहर में मनाया जाएगा, जिसके खुसूसी खतीब होंगे हवक्कार शहजादे वक्कार मिल्लत खलीफा हुजूर अजीज मिल्लत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जवाली नवादा बिहार की सरजमी से चल के आपके जागे मोहब्बत में तशरीफ लाएंगे। एक इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत नाथवाने रसूल बुलबुल हराई की बख्शिश हजरत मौलाना गुलाम नबी मुजस्सम साहब किबला उन्नाव की सरजमी से आपकी जागे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आपके नामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप कल की शब में पहले ही फुर्सत में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जामे मस्जिद के शहर में तशरीफ लाए, इसलिए कि मुझे इस बात की उम्मीद है आज का मजमा देख के कि कल कुर्सी भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी साहब का फैजान होगा और लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। इस तरह के साथ हजरत को मैं माइक पे कुर्सी खिताबत पे अरीज़ हुज़ूरी पेश करता हूँ बड़े भाई मौलाना हसनैन रज़ा साहब किबला चंपागली के बैगाह में कि इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत दूं कि कलाम अच्छा है तो शेर भी अच्छा होगा, कलाम अच्छा है तो शेर भी अच्छा होगा, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा, मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा। मियाँ ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। माइक पे हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रज़ा साहब किबला चंपागली।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ پورا مجمع اپنے نبی پہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء ملت اسلامیہ اپنے محلے سے چل کر ذکر حسین میں شرکت کرنے والے میرے پیارے بھائی حسینیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اپنی روایت کے مطابق گزشتہ پروگراموں کی طرح ان سال کا بھی یہ پروگرام بحسن خوبی اپنے منزل مقصود تک عنقریب پہنچنے والا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے بحسن خوبی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نہیں جانا کہ آپ نے سنا کیسے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس کو مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ موضوع آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی، حضرت حور، حضرت قاسم، حضرت عباس، 4 شہداء کی زندگی پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور ان کی شہادت پہ۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بیچ سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے اصول کے مطابق
मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। जैसा कि स्टेज पर सब मिला के हम लोग 4 आदमी है, उससे बेहतर तो तादाद आप लोगों की है। यहाँ के गुंबदो मीनार सारी चीजें देखने के बाद बड़ी खुशी होती है, मगर ऐसी सूरत पर जब ये सारी जगहें खाली रहती है तो बड़ा ताज्जुब होता है। बहरहाल उधर मुझे गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं अजीमुल्लाह भाई और शाहिद भाई, अबरार भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आप लोग हैं, और आप लोगों से उम्मीद भी है कि हमारे मौजू को मुकम्मल कराने में मेरे बाजू की ताकत आप लोग बनेंगे। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करूं, मगर इससे पहले कि आप लोग भी अपना मिजाज हुसैनी बनाइए, जिस्म फिक्रा कनक के सरजमीन पे रखिए और रूह और रूहानियत को करबला से जोड़िए, इसलिए कि आपको हमसे शहादत सुननी है, कोई दूसरी तकरीर हमसे आपको नहीं सुननी है। हजरात, हम अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से कर रहे हैं कि एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग बोलिए, शुरू में बोल लीजिए, उसके बाद चुप हो जाइएगा। एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, यानी रसूले पाक की तस्वीर है हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह। बोल रहे हैं, थोड़ी सी और नौजवान तेज हो जाए। एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, यानी रसूले पाक की तस्वीर है हुसैन। ये सोचते ही अपना मुकद्दर संवर गया, ये सोचते ही अपना मुकद्दर संवर गया कि हम जैसे बेनसीबों के तकदीर है हुसैन। ये सोचते ही अपना मुकद्दर संवर गया कि हम जैसे बेनसीबों के तकदीर है हुसैन। और हुसैन ने जो दी है वो उड़ान रखते हैं, हुसैन ने जो दी है उड़ान रखते हैं, पांव तले हम भी आसमान रखते हैं। यजीद भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़े खानदान रखते हैं। हजरात, अब तक मौजू के एतबार से आप लोगों ने सुन लिया है, अब मैं शुरू होता हूँ। गुलामे हुसैन हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी से, चूंकि बैनर में सिर्फ हजरत वहाब लिखा है, लेकिन उनका पूरा पता यही है, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी। हजरात, इनकी अजीम शख्सियत कौन है आपको मालूम है? हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी अपने बाप के लौटे बेटे थे। मैं आपको पूरी सवाने उम्र के साथ मुख्तसर अंदाज में वक्त का भी ख्याल किया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, और पूरी बात ही मैं कह जाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि कल आपको ये महसूस न हो कि फला चीज आपको नहीं बताया गया। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी अपने बाप के लौटे बेटे थे, अभी बचपने के आलम में थे। आपके बाप का विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया। हजरात, बूढ़ी माँ है, माँ ने अपनी मेहनत और मशक्कत से हजरत वहाब को पाला है। हजरात, वह इंसान ही जानता है कि जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो, माँ के साये के नीचे में जो अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, उससे पूछिए कि यतीमी की जिंदगी कैसे होती है, यतीम की हवाएं कैसे होती हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। हजरत वहाब जो हैं, उनके बाप का इंतकाल बचपन के जमाने में हो गया है। अब दूसरा कोई भाई भी नहीं जो आपको संभाले। आपकी माँ है, मेहनत और मजदूरी करके हजरत वहाब को पाल रही हैं। हजरत वहाब जब जवानी के दहलीज पे पहुंचे तो लामोहाला हर बेटा जब जवानी के दहलीज पे पहुंचता है, चाहे दुनिया में सिर्फ बाप हो या माँ हो, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश की जाए, अपने बेटे के लिए एक दुल्हन, अच्छी दुल्हन की तलाश की जाए। आप इस तरफ सुन रहे हैं, बगौर ऐसे ही सुनिए, हमें सुभान अल्लाह या दादो तासीन की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज की शहादत आपकी जबान बंद रहेगी।
मगर आपका दिल से या हुसैन के नारे लगने लगेंगे। मगर शर्त यह है कि गौर से सुनिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरात जब जवानी के तहलील पे पहुंचे हैं हजरत अब्दुल्ला, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला, तो आपकी माँ ने बुलाया था, बेटा इसी दिन रात के लिए मैंने पाला, अब जवानी के तहलील पे पहुंच गए हो, अब हमारे हाथ काम नहीं करते कि सही से आटा गूंथ सकूं, अब हमारा हाथ काम नहीं करता कि सही समय खाना खिला सकूं, अब इसके काबिल हो गए हो, अब तुम्हें दुल्हन की जरूरत है, अब घर में एक नई नवेली दुल्हन को लाने की जरूरत है। हजरत वहाब की शादी हुई है, शादी होने के बाद अभी सिर्फ मात्र 17 दिन गुजरे हैं। कितने दिन बोलिए, कितने दिन, कितने दिन? 17 दिन में हाथ का पीलापन भी नहीं जाता है, 17 दिन में जिस्म की खुशबू भी नहीं जाती है, 17 दिन तक ये महसूस होता है अभी हम दूल्हा बने हैं। मात्र 17 दिन हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला के गुजरे हैं शादी के। घर में नई नवेली दुल्हन है, घर में एक जीनत है, घर में एक हुस्न आराम कर रहा है, घर के अंदर एक अरमान है, एक बूढ़ी माँ है। हजरात ऐसी सूरत पर मैदान करबला का सारा नक्शा जब माँ के सामने जाता है कि मैंने सुना है हुसैन इब्ने अली मदीना से मक्का आए, कूफा वालों ने धोखा देकर उनको कूफा के सरजमीन पे बुलाया, बुलाने के बाद उनके ऊपर पानी भी बंद कर दिया, उनके बच्चों के साथ ज्यादती हो लगी है, उनके घर वालों के पास पानी लगी है। उन्होंने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि अपने बेटे को रहे खुदा में मैं कुर्बान क्यों न कर दूं। हजरात माँ होती है ना, आप जरा अंदाजा करो तो सही, माँ होती है। एक बेटे को हल्की सी बुखार आ जाए तो माँ पूरी रात नींद को कुर्बान कर देती है, एक बेटे को तकलीफ पहुंच जाए माँ पूरी रात उसकी आंखें नहीं लगती। लेकिन कितनी बड़ी जिगर रखती है हजरत वहाब की अम्मी, अपने जवान बेटे को बुला रही है और बुलाने के बाद कहती है कि बेटे तुमने सुना है ना कि कूफा के सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली को धोखा से बुलाया गया? हाँ अम्मी मैंने सुना है। तुमने सुना है ना कि कूफा वालों की नीयत अच्छी लगी है, यहाँ पे ज्यादती हो लगी है, उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया है। आपने कहा कि बोलो अम्मी चाहती क्या हो? कहा बस जिंदगी की एक भीख मांगनी चाहती हूँ। ए बेटा बड़ी मजदूरी करके मैंने तुझे पाला है, ए बेटा बड़ी जिम्मेदारी से मैंने तुझे पाला है, कोई माँ ना की चाहती कि मेरे घर रोशनी न रखे, तुम्हारी शादी भी मैंने कर दी, मगर इतनी जवान कर दे पाल कर मैंने कभी तुमसे सवाल नहीं किया। ये मेरे बेटे वहाब जरा ये तो बताओ क्या मैं आखिरी आरजू पेश करूं, मेरी आरजू को पेश तुम पूरा कर सकोगे? हजरत वहाब ने कहा था हे अम्मी जान आपने पूरी जवानी मेरे लिए कुर्बान कर दी, आपने बुढ़ापे तक रोटी बनाई मैं खाता रहा, बुढ़ापे तक आपने मेरे लिए बिस्तरा की है, बुढ़ापे तक आपने मेरा ख्याल रखा है, वफादार बेटा हो, आखिरी ख्वाहिश तो जरा जाहिर करें, इंशाअल्लाह आपका बेटा वफादार निकलेगा। आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरे दूध का हक इस तरह अदा कर दो कि सामने रूखे हुसैन हो और उसके सामने तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाई जाए और तुम शहादत की जाम नोश कर लो। आपने कहा था अम्मी वादा इंशाअल्लाह मैं पूरा करूंगा। आप कहते हैं कि अम्मी जान अगर इजाजत दें तो नेक्स्ट दिन की नई नवेली मेरी दुल्हन है, उसका भी हक मेरे ऊपर है, जरा उनसे मैं इजाजत ले लेता हूँ। घर के अंदर जाते हैं, अपनी बीवी को आप सलाम पेश करते हैं। इन लोगों मैदान करबला में सिर्फ तलवार नहीं चली थी, सुबह कयामत तक के लिए उम्मतियों के लिए सबक पढ़ाया गया था। एक अजीम दरसगाह चलाया था इमाम हुसैन ने, एक अजीम कॉलेज चलाया था इमाम हुसैन ने, में से एक अजीम पैगाम दिया था आने वाली नस्लों को कि देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। हजरत वहाब अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाने के बाद सलाम पेश करते हैं। दौरे हाथी में बहुत कम ऐसे सवाल है जो अपनी बीवी को सलाम करते हो, मगर आप सलाम पेश कर रहे हैं। माँ की नीयत और माँ की ख्वाहिश निगाहों के सामने आए, जाने के बाद सलाम पेश के करते हैं ए मेरी नई नवेली दुल्हन अभी तेरी मेहंदी वैसे ही नजर आ रही है, तेरा सुहाग बड़ा ताजा नजर आ रहा है, बोलो कुछ मांगो तो मेरी आरज़ू पूरा करोगे कि नहीं करोगी? वफादार बीवी थी। आपने कहा ये हुस्न जमाल तेरे लिए है, ये आँख की सुरमखी तेरे लिए है, ये जुल्फे तेरे लिए है, ये पूरा सुहाग तेरे लिए है, ये रंगीन कपड़े तेरे लिए है। ये मेरे सरताज बताओ तो सही आखिरी
ख्वाहिश आपकी क्या है? काश मैं मेरी अम्मी जान की ख्वाहिश ये है मैं बरगाह हुसैन में पहुंचूं और पहुंचने के बाद मैं शहादत की मंजिल तय कर लूं, ताकि कल क़यामत में ये कबीला जब नाना उनके नाना बुलावे तो उन शहीदों के साथ में तेरा वफादार शौहर भी वहां पे जाके हाजिर हो जाए। कितनी वफादार है बेटी। आज के मेरी बहनें होती तो कहती क्या शादी इसीलिए आपने किया था कि आप मेरे घर अपने घर लाकर आप शहीद हो जाइए? अभी 17 दिन हुए हैं, जरा थोड़ा सा रहिए तो सही, कुछ दिन गुजार लेते हैं, गुजारने के बाद आपको जो मर्जी आएगी करेगी, या एक बच्चा पैदा हो जाए तो जो फैसला कीजिएगा कीजिएगा। हजरात हजरत वहाब की बीवी है, कहती है वास्तव में आप मुझसे इजाजत ले रखे हैं? कहा हाँ वास्तव में मैं इजाजत ले रहा हूँ। कहा मैं इजाजत तो दूंगी मगर चंद शरायत के साथ मैं इजाजत दूंगी। कहा वो शरायत क्या है? कहा वो हमारी शरायत ये है, कहा आप वादा कर लीजिए कि अगर शहीद हो गए और कल क़यामत में शहादत के बदौलत आपको जन्नत मिलेगी तो आप मुझसे वादा कर लीजिए कि तनहा नहीं जाइएगा, अपने शरीके हयात को भी जन्नत में लेकर जाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कि ये महसूस हो कि आप सुन रहे हैं, आप जैसे सुनेंगे इंशाअल्लाह मैं वैसे सुनाने के लिए तैयार हूँ। ये फैजान हाजी गाजी हुजूर गाजी मिल्लत का है, ये लोग रमजान के तरह भी सुनाते हैं। इनका फैजान ये है अल्लाह ने चाहा तो मैं एक माइक पर पूरे करबला की तरह भी सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप जरा अंदाजा करो तो सही। कहती है एक दूसरा वादा ये है कि ये आप बताइए चल के आका हुसैन के सामने वादा ले लीजिए कि अगर आपका साया मेरे सर से उठ जाए, मेरा सुहाग लुट जाए तो मैं इस सोने घर में रह करके मैं क्या करूंगा? आप वादा करा लीजिए कि आपकी शहादत के बाद इस घर में मैं रहने वाला लगे। मैं चाहता हूँ कि खेमे हुसैन में जाऊँ, उम्मे रुबाब का कपड़ा धो लूँ, खेमे रुबाब हुसैन में जाऊँ, हाफिज ज़ैनब की खिदमत करूँ, खेमे हुसैन में जाऊँ, मैं सकीना को पानी पिलाऊँ, खेमे हुसैन में जाऊँ, मैं अपनी किस्मत को जगा लूँ। कितनी वफादार है बेटी बीवी हजरत वहाब की। जरा अंदाजा करो तो सही। बूढ़ी माँ है, एक तरफ हसीनो जमील नई दीन की वो दुल्हन है और जवान दूल्हा है, दोनों दरबारे हुसैन में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सलाम पेश करते हैं। कहते हैं हुजूर आपके दरबार में चंद सवालात लेकर के हम आए हैं। माँ ने कहा एक नजराना है मेरे पास, एक गुलाब का फूल है जिंदगी का, एक सहारा था बुढ़ापा का जिंदगी का। ए आका हुसैन आपके बारगाह में मैं दो हसीन चेहरे लेके आई हूँ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, मात्र 17 दिन इनकी शादी के हुए हैं, मैं इसलिए लेके आई हूँ। एक नजराना मैं भी दे रहा हूँ और एक नजराना वहां की बीवी भी दे रही है। काश आप कबूल फरमा लेते। बड़ी साबिर थे न आका हुसैन, बड़ी करम फरमा थे न आका हुसैन, बड़ी नजर वाले थे न आका हुसैन, बड़ी करामत वाले थे न आका हुसैन। आका हुसैन तो इतनी बड़ी करामत वाले थे कि सारी दुनिया के सजदों से कुछ हो जाता हो मगर तन्हा मैदान करबला का एक सजदा मेरे आका हुसैन का इस्लाम बचा के चल दिया। आपके सजदे पे जब नजर पड़ती है तो शायर को बोलने पर पढ़ने पे मजबूर होता है कि क्यों पूछते हो मुझे से तो रोते हुसैन का। से बोलिए सुभान अल्लाह। रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का, क्यों पूछते हो मुझसे तो रुतबा हुसैन का। आज इस्लाम को बचा लिया सजदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। माशाअल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, एक सजदा मैंने ज़मीने करबला से ले लिया। हजरात ये बूढ़ी माँ है, जवान दुल्हन है और दूल्हा है। आका हुसैन कहते हैं बूढ़ी अम्मी किस लिए आई हैं? कहा ये बुढ़ापे में ही घर में थी, ये मुझे पता चला है कि मैदान करबला में आपके साथ धोखा हुआ है, ये मेरा जवान बेटा है। मैं चाहती हूँ कि इस नजराने को आप यूं कबूल कर लें कि आप निगाहों से देखते रहें और मेरा बेटा अपनी गर्दन कटाता रहे, तीर अपने सीने पे खाता रहे। आपकी बीवी बोल पड़ती आका हुसैन मगर हमारे चंद सवालात हैं, उन सवालात को भी सुना जाए। आप गवाह बन जाइए और इनसे वादा ले लीजिए कि कल शहादत के बदौलत जब ये जन्नत में जाएं तो मुझको भी जन्नत में लेकर के जाएं। और इनसे कहलवाइए कि दुनिया में अगर मैं बीवी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जन्नत में इन्हीं की बीवी बन करके मैं रहूं। आका हुसैन के सामने वह दिन
यहाँ लगी। तुम्हें भी लेके जाऊंगा, अपनी माँ को भी लेकर के जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा तो हुआ के बजाय मैं तुम्हें अपनी बीवी बना करके रखूंगा। ये वादा कहाँ लिया जा रहा है? ये वादा आका हुसैन के खेमे में लिया जा रहा है। ये वादा कहाँ लिया जा रहा है? जहाँ पे जगह रोज तमाम अहले बैत की खवातीन हैं, हजरात वादा ले लिया गया। मियान से तलवार निकाली है हजरत वहाब ने, कहा अब तो मां भी रजा की जाहिर कर दी है और बीवी ने भी इजाजत दी है। और इजाजत देने के बाद मियान से तलवार निकालते हैं और मैदान के अंदर जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो इब्ने साद ने देख लिया ये करियर जवान है जिसके हाथ अभी पीले हैं, जिसके माथे पे बड़ी चमक है। ये कौन सा करियर जवान है? लोगों ने कहा था सुनो सुनो ये फला मोहल्ले का रहने वाला है, ये मदीने और मक्के से नहीं आया है, इसी इलाके का रहने वाला है। इब्ने साद ने कहा उसे जरा करीब बुलाओ तो सही। करीब बुलाया गया। कहाँ आए हो? कहा हुसैन के नाम पे मरने आए हैं। कहाँ आए हो? कहा सदाकत को बचाने आए हैं। कहाँ आए हो? कहा दिल को बचाने आए हैं। कहाँ आए हो? कहा आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होकर अपने आप को भी जन्नती बनाने आए हैं, खानदान को भी जन्नती बनाने आए हैं। हजरात उसने कहा था इब्ने साद ने अभी पागल हो गए हो, अभी तलवार चलेगी तुम्हारी जिंदगी निस्तो नाबूद हो जाएगी। तुम्हारी नई नवेली दुल्हन जो 19 दिन की है उसका सुहाग रुक जाएगा, रंगीन कपड़े उतर जाएंगे। तुमने गलत फैसला कर लिया है। उस हुसैन के खेमे में गए हो जिस हुसैन के पास पीने के लिए पानी भी लगी है, उस हुसैन के पास गए हो जिनके पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा लगी है, उस हुसैन के पास गए हो जिनके बच्चे खाली हाथ मैदाने का रोजार में आए हैं। एक काम करो ना, मेरी बात मानो, इधर पलट आ जाओ, तुम भी बचोगी, तुम भी बचोगे, तुम्हारी बीवी का सुहाग भी बचेगा, तुम भी बचोगे, तुम्हारा घर भी बच जाएगा और तुम्हें तक तो ताज देकर बड़ी सारी चीजों से नवाजा जाएगा। एक हम भी हुसैनी है लोगों, एक कप चाय की वजह से झूठी शहादत दे देते हैं, लेकिन मैदाने कारोबार जजार में मौत निगाहों के सामने है। लालच तक तो ताज का दिया जा रहा है, खानदान बचाने का दिया जा रहा है। ऐसी सूरत पर दार आवाज में खिताब किया था हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह ने, ऐ इब्ने साद सुन ले, हम गुलाम हुसैन है। हुसैन तुम्हारे तख्त सागी को वहाब बिन अब्दुल्लाह सागी जो खाम से ज्यादा है इसलिए लगी देता। हम दुनिया कमाने नहीं आए हैं, बरगाह के मुस्तफा से जन्नत लेने के लिए आए। हम दुनिया कमाने के लिए नहीं, बरगाह के रसूल से जन्नत पाने के लिए आए हैं। हजरत वहाब के मुकाबले में 3 जवान करके आते रहे। करियर जवान फेरेगा इन्हीं के मुकाबले में, अपनी तलवार से तीनों को आपने फिन्नार किया है। हजरत वहाब के मुकद्दर में ही अजल से की शहादत का जाम लिखा था। अभी चंद ही दिन पहले शहनाई बजी थी, मगर एक शहनाई ऐसी बजी सुनने वाले मस्त हो गए। सुभान अल्लाह। एक शहनाई ऐसी बजी जब 3 जवानों को वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने फिन्नार कर दिया। इब्ने साद ने कहा एक एक करके जाएंगे तो लग रहा है ये सबको मारेगा। ये एक काम करो ना, एक बारगी हमला करो। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को एक बारगी घेरा गया आपके घोड़े को, और घेरने के बाद एक बारगी हमला किया गया। जख्मों से इतने चूर हुए हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कि जख्मों से चूर होकर के घोड़े के एड़ के जरिए आप जमीन पे गिरते हैं। गिरना ही था कि ऐसी तलवार मारी गई कि आपका जिस्म अलग हो गया और आपका सर अलग हो गया। कितना बड़ा जिगर दिया है आका हुसैन को। आवाज दी इब्ने साद के चपाइयों ने कि हुसैन आओ, एक तेरा जानिसार आया था जिसकी गर्दन हम लोगों ने अलग की है। हुसैन खेमे से आ गए हैं, खेमे में आपकी माँ और आपकी बीवी है। सरे वहाब को उठाया है इमाम हुसैन ने और ली जाने के बाद बीबी के करीब में लगी, माँ के गोद में रखा है। माँ के जब गोद में रखा है, लोगों जरा देखो तो सही कितना बड़ा जिगर रखती थी आपकी अम्मी। आज रात आपके गोद में वहाब का जब सर रखा गया है, एक चीख मारी है आपकी अय्या ने, ए मौला, ए मौला, ए मौला, मेरे सरताज की शहादत को कबूल फरमा ले। पर ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा अंदाजा करो तो सही, खुद फैसला कीजिए कि लोगों इस्लाम कितनी मुशक्कत से हम तक आया है। जब आपका सर आपके माँ के गोद में रखा गया होगा, क्या माँ का दिल न फटा होगा? क्या आपकी बीवी के सामने जब काटा हुआ सर लेकर के आका हुसैन गए होंगे, क्या उसका कलेजा न फटा होगा? आने वाली सुबह कयामत तक अपनी बहनों को ये सबक पढ़ा रही है
वहाब की बेटी, एक तरफ इस्लाम का सुहाग हो और एक तरफ तेरा सुहाग हो। अगर वो पड़ जाए तो अपने सुहाग को लुका कर इस्लाम के सुहाग को बचा लेना, इस्लाम की सीना को बचा लेना। आप जान ताजा करो तो सही। अगर आज भी हमारे घरों में ऐसी हुसैनी खवातीन हो तो आज हर घर में गुलाम हुसैन पैदा होगा, हर घर में गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। हजरात, आपकी शहादत हुई, आपके शहादत के बाद काफी भी अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। एक शहादत आपने सुन ली है, अभी 3 शहादत आपको सुनाऊंगा। सुनेंगे तो 2-4-10 मिनट पढ़ भी सकते हैं, वरना वक्त की पाबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। हजरात, और सुन भी रहे, इसमें कैसे सुधार रही। हजरत वहाब की शहादत के बाद एक नाम आता है हजरत हूर का। हूर जानते हैं कौन है? हूर जिनको करबला के सरजमीन पर इब्ने ज़याद ने कमांडर बनाया था। आका हुसैन जब मक्के से चले थे, जिनके रास्ते पे रोका था बॉर्डर पे, उसका नाम हूर है। मगर वाह रे हुसैन, तेरी अजमत को सलाम। जब तक हूर उधर थे तो लोग कहते थे हूर था, जब इधर आ गए तो हजरत हूर हो गए। और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक उधर थे हूर था, जब इधर आए तो हजरत हूर हो गए। आका हुसैन अक्सर मैदान में खिताब फरमाते थे, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब जिसका दिलो दिमागी या जिद्दियत जैसा हो गया, आप इसको कौन समझा दे। जब भी जाते थे तो एक नारा लगाते थे आका हुसैन, हल मिम मोगीसी योगी सना, हल मिम मोगीसी योगी सना, हल मिम मोगीसी योगी सना। है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो हमारी मदद करे। एक मर्तबा ये आवाज जब लगाई थी आका हुसैन ने, हल मिम मोगीसी योगी सना, है जो कोई हमारी मदद करे। खुशी की लौट पर पड़ी में साथ के सिपाहियों में। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा चंद की शहादत हुई है, हुसैन हार मान गए। कहा कैसे हार मान गए? कहा देखो वो मदद का जो है तलबगार है, वो मदद के लिए कह रहे हैं, हल मिम मोगीसी योगी सना, है जो कोई हमारी मदद करे। मगर उनके मिजाज, उनके समझ को जब आका हुसैन ने देखा तो कहा नादानो, हम तुमसे मदद नहीं मांग रहे हैं, हम अपने निगाहों से कुछ जन्नती रूहों को तरफ देख रहे हैं। तुम्हारे तरफ कुछ जन्नती रूहें हैं, हम उनको आवाज दे रहे हैं। कभी हुसैन का दरवाजा खुला हो तुम आ जाओ, अब भी हुसैन की सखावत जिंदा है तुम इधर आ जाओ। हम तुमसे मदद नहीं मांगते, हम कुछ जन्नती रूहों को देखते हैं। क्योंकि हूर अगरचे पहरा पे पहरा लगा रहे थे, मगर इब्ने साद से एक मौके पे कहा था, क्या वाकई खोने जी तुम लोग करोगे क्या उनसे? इब्ने साद ने कहा तो फिर तुमको सुबह नजर आ रहा है। तो बड़ी गमगीन रहते थे हूर। पहले से मजाज उनका दूसरा था ही, इसलिए कि हर आदमी का जब किस्मत बदलना होता है तो पहले दिल बदला करता है। जब उनको ये महसूस हुआ कि लग रहा है ये लड़ाई लड़ ही लेंगे, तो हजरत जैसी आवाज दी है, घोड़े को एड़ लगाया है हजरत हूर ने। लगाने के बाद खेमे हुसैन के तरफ आए गए। हुसैन को लगा हूर लग रहा है हमला करने आएंगे। अदब तो इतना था हुसैन का कि आपके करीब घोड़ा लेके हूर नहीं आते, कुछ दूर ही पे हूर जो है घोड़े से उतरे और ऐसे जो है अदब हुसैन के कदमों पे आ रखे हैं। हुसैन समझ गए शायद कि पूरे यजीदियों में मेरे खिताब को समझा है तो हूर ने समझा है। और मेरी निगाहें देख रही थी तो हूर के पेशानी में जन्नत की बशारत लिखी हुई है। लग रहा है हूर हमारे कदमों में आने वाले हैं। लिहाजा आके कहते हैं, बाबा आका हुसैन नवासे रसूल, मक्के के सरजमीन से लेके मदीने तक आपके नाना के ऊपर इतना जुल्म किया गया, मगर किसी के लिए आपके नाना ने बद्दुआ नहीं की, सबके लिए खैर की दुआ की और सबको माफी भी आपने दिया। ए आका हुसैन, उन्हीं के गोद में आप पले हैं ना? कहा उन्हीं के गोद में पले हैं। कहा जब नाना माफ कर सकते हैं तो नवासा भी माफ कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नाना माफ कर सकता है तो नवासा भी माफ कर सकता है। क्या हमें आप माफ करेंगे? कहा किस चीज की माफी चाहते हो? कहा हमने तलवारें भी चलाई हैं, आपके ऊपर पानी भी
मैंने बंद किया था, आपको ऊपर लादो तान भी मैंने भेजा था। अब मेरा दिल कह रहा है अब दुनिया में अगर तुम सुरखरू बनना चाहते हो तो कदमे हुसैन में चले जाओ। ए आका बताइए क्या आप माफ करेंगे? जरा मिजाज देखो तो सही आका हुसैन का। आप कह सकते थे कि मैंने माफ कर दिया, अगर इतना कहते तो ऐसा से कम तरीका शिकार दूर बन जाता। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने माफ किया है, न जाने ज़ैनब ने माफ किया है कि नहीं किया है, हुसैन ने माफ किया है, न जाने सकीना ने माफ किया है कि नहीं किया है, ना सकीना ने माफ किया है कि नहीं किया है। ये जवाब आका हुसैन नहीं देते। आप आपकी दाढ़ी मुबारक को पकड़ते हैं, कहते हैं हूर खड़ा हो जा, दस्ते दस्ते शफकत को सर पे रखते हैं, कहते हैं हूर तू तो जहन्नम से आजाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना बेहतर जवाब दिया, कितना बाप करने का अंदाज देखो तो ही, तू तो जहन्नम से आजाद है। मारे खुश के हजरत हूर आपके कदमों में कहते हैं ये तलवार तो उधर की है मगर ये हाथ हमारा है, ये ताकत उधर की थी मगर अब होशियारी हमारी होगी। ए आका मैं वादा लेता हूँ जब तक हूर की बाकी रहेगी, जब तक हूर की जान बाकी रहेगी, अब खेमाए हुसैन में किसी यजीदियत के अंदर हिम्मत नहीं कि वह हमला कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। वाह सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा करो तो सही, वादा ले रहे हैं मगर हूर का दिल कह रहा है हूर ताखीर ना करो, जिस रास्ते पे वह गए हैं उसी रास्ते पे तुम भी चल पड़ो। ये जानिसारों का मौका चल रहा है, सब अपनी वफादारी को पेश कर रहे हैं। हजरत हूर ने मैदान से तलवार निकाल के लहराया था। आका हुसैन ने कहा अभी आए हुए चंद मिनट हो गए, ये क्या कर रहे हैं हूर? कहा ये तलवार कह रही है अब मैं ठंडी नहीं रहूंगी, उस वक्त तक हुसैन के दुश्मनों को मैं ठंडा न कर दूं। ए आका हुसैन क्या मुझे इजाजत आप दे सकते हैं? कहा भी मैं इजाजत देता हूँ। बहरहाल बड़ी असरार के बाद हूर को भी इजाजत दी गई। अब इधर तो यजीदियों में कोहराम मचा था जिसके बल पे हजार हजार का लश्कर अलग अलग था, वही कमांडर निकल कर उधर से चला गया है। ये सारे हालात को जानता है कि किस रास्ते से कौन सी फौज आई है, किस रास्ते से जाएगी। अगर हुसैन के सामने सारी बातें रख दी हम लोगों के लिए खात्मा का जरिया हो जाएगा। हुसैन घोड़े पे, हुसैन का चाहने वाला हूर घोड़े पे सवार होता है और होने के बाद सीधे मैदान जंग में जाता है और वही नारा लगाया था जो नारा हुसैन ने लगाया था, हल मिन मोगीसी योगी सना, है जो कोई हमारी मदद करे। इब्ने साद के सिपाहियों ने कहा था माए से हुसैन के पास चले गए कि जाते ही मदद मांगने की जरूरत पड़ गई। कहा नहीं अब तक तो हुसैन देख रहे थे, हुसैन की निगाहों से हूर देख रहा है, अब भी कुछ जन्नती चेहरे उधर नजर आ रहे हैं। मैं उन लोगों को दाव पे फिक्र दे रहा हूँ कि काश अब भी वक्त है हूर के साथ तुम भी पलट आओ। हूर ने अपनी तलवार को चमकाया है, सन्नाटा छाया है 22,000 के लश्कर में। ऐसा लग रहा था इब्ने सयाद के सिपाही सबके सब यतीम हो चुके हैं, उनका दिमाग फेल कर चुका है, वो सबके सब पागल हो गए हैं। तो हूर की तलवार चलती है लोगों, मगर जैसे कि आपके भी मुकद्दर में शहादत की मंजिल लिखी थी। हूर ने कहा इब्ने साद अब तक तुम्हारे तरफ थे तो पावरफुल थे, क्या अब मैं पावरफुल नहीं हो सकता हो तो भेजो ना किसी को मेरे मुकाबले में करे। इब्ने साद से काफी देर तक हजरत हूर से बात हुई थी। आखिर क्यों गए हो, क्या देख करके गए हो, आखिर क्यों गए हो, क्या दौलत कौन सी देखी है? कहा जवाब सुनिए और ढूंढते जाइए शाही साहब, इस पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। जब इब्ने साद ने कहा था क्या देखकर हुसैन की तरफ गए थे और क्या देख करके छोड़े हो? कहा इब्ने साद जब तेरे तरफ में था इब्ने सयाद का चेहरा देखता था, जब तेरे तरफ था यजीद पलीद का चेहरा देखता था, जब तेरे तरफ था तो मैं लश्कर देखता था, जब मैं तेरे तरफ था तो मैं तेरी तादाद देखता था, जब मैं तेरे तरफ था तो मैं तेरी बुराइयों को देखता था, जब मैं तेरे तरफ था तो तुम्हारी हक्कानियत को नहीं बल्कि तुम्हारे जुल्म को देखा करता था। लेकिन जब हुसैन के खेमे में गए थे तो जो हूर कुछ नहीं देखता था, खेमे में रहते रोजे रसूल देखने लगा है, तेरे रसूल देखने लगा है, ज़ैनब की सीरत देखने लगा। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा करो तो सही, निगाह बगी है मगर खेमे हुसैन की बरकत देखो। आप कहते हैं तेरे खेमे में जब तक था तुम लोगों को देखता था,
मगर हुसैन के जब कदमों में गए हैं तो चेहरे मुस्तफा देख रहे हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से, और क्या ना चेहरे मुस्तफा देखे हो। बहरहाल वो तारीख मेरे हिस्से में नहीं, जिनके हिस्से में होगी सुनाए होंगे या सुनाएंगे। भूल रहे बातें काफी देर से चल रही है। ऐसी सूरत पर भूल ने कहा क्या मेरे मुकाबले में कोई नहीं आएगा क्या? आ जाओ, इतना ख्याल रखिएगा मैदान करबला में कोई भी लड़ाई जारी नहीं। पहले बात हुई, जब उधर से अंगड़ाई ज्यादा हुई है तो हुसैनी खून जज्बा में लाया है। और ने कहा बातें बहुत हो गई, वक्त नहीं है मेरे पास। अवसर पे हुसैन का नाना मुझे आवाज दे रहे हैं, और बड़ा नवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आज दाना दाना बोलिए सुभान अल्लाह, और बड़ा नवाज से सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ आया हो तो सुना के जाऊं। दाना दाना मेरे सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे तो बुलवाने का ढंग से मांगता हूं। आधा मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़िए। दाना दाना मेरे हुजूर का है बात। सुभान अल्लाह। पूरा माना बड़ा दबा से पढ़िए। दाना दाना मेरे। ए नौजवानों, बंद करो पानी पीना, जरा पढ़ लो, और फिर सब सुनने के बाद ये पानी पीना इंशाअल्लाह शफा मिल जाए। दाना दाना मेरे हुजूर का है कुल खजाना मेरे हुजूर का है कुल खजाना। एक नारा आप लोगों में से लगना चाहिए। पानी आप पी रहे, बोल हम रहे, एक नारा लगनी चाहिए। सर झुकाया अजमला भाई, 10 रुपया तो ये देना है। साथी नाम दे दे तो समझो कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। सर झुकाया नहीं काटा डाला, सर झुकाया, सर झुकाया नहीं कटा डाला। ये घराना, ये घराना मेरे हुजूर का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत मौलाना हसन साहब कुबला। तो हूर ने तलवार निकाली और एक खिताब फरमाया था, सब उसी हुजूर का है, मैं जिनका जलवा देख रहा हूँ। हजरात जरा अंदाजा करो तो सही, हूर मैदान में तनहा डटे हैं, मुकाबले में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जितना पैंतरा तैयार किए थे उधर ये हुजरते हुई भी तैयार किए थे। उनको मालूम था कौन कैसी तलवार चलाता है, किसका हाथ बायां चलता है, किसका हाथ दायां चलता है। सारे पहलवानों ने सर झुका दिए थे। आपने हंसी मजाक में कहा था, ए आजाद मुल्क शाम के तुम बहुत बड़े हो, जरा आ जाओ ना मुकाबले में। उसका भी सर झुकता रहा। हजरात जब कोई नबी आया तो हूर की तलवार चमकी है, और खुद इब्ने साद के खेमे में, इब्ने सयाद के खेमे में हूर पहुंचे हैं, और ऐसी तलवार चला रखे हैं जैसे बरसात के मौसम में आसमानी बिजली चमकती है, आसमानी बिजली कड़कती है। ऐसे अंदाज चलाते चलाते न जाने कितना को गाजर मूली की तरह काट दिया। एक आवाज दी, हुसैन सर को सजदे से उठाओ तो सही। अगर आपने दुआ दे दी तो तनहा हूर इंसान इन लोगों के लिए काफी है, मगर अजल से ही आपके मुकद्दर में शहादत का जाम लिखा था। हजरात जब भी यजीदियों ने देखा है तो अब तनहा मुकाबला मुमकिन नहीं है, तो चूंकि 22,000 की तादाद कम नहीं होती, उन्हीं तादाद में कुछ बॉर्डर पे थे, कुछ नहरे खुराक में थे, कुछ मैदान में थे, कुछ उनके खेमे के तरफ थे। ये चारों तरफ सिपाही फैले हुए थे, जैसे लग रहा था जहन्नम का नजारा बना हुआ है उनका खेमा। आप जरा अंदाजा करो, तलवार चलाते चलाते हुर थक
गए थे। एक जालिम ने कहा, ए हूर कम से कम थक के आराम तो कर लो। उसके झांसे में आए थे हूर। होने के बाद जब तलवार आपने रखी है तो जालिमों ने एक बार की तीरों की बरसात की है। जख्मी हुए हूर होने के बाद धूप की ताब ना ला सके, लाने के बाद जमीन पे गिर कहते हैं, ए हुसैन अभी रूह बाकी है हुसैन, अभी मैंने जन्नत का सफर नहीं किया है हुसैन, अभी जन्नत का नजारा नहीं देखना चाहता हूँ हुसैन, अभी जन्नत के बहारों को नहीं देखना चाहता हूँ आका हुसैन। काश आप आ जाते, रूह निकल रही होती, जियारत आपकी हो रही होती। ये हमारा मुकद्दर था। आका हुसैन आते हैं, आप खून में लपट है तड़प लगे हैं। रूखे हुसैन पर जैसे भी नजर पड़ी है, रूह ने कहा इससे बेहतर मौका नहीं है। आंख जहां पहुंची है वहीं पे ठहरी रहे। रूह निकली है, आंख वहीं पे ठहरी है। ऐसा महसूस हो रहा था या तो जन्नत हूर को देख रही है या जन्नती चेहरे को हूर देख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। आप जरा अंदाजा करो तो सही, हूर की शहादत हुई। पूरा मन्ना पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़ार दो शहादतों को आपने सुन ली है, मगर उन शहादतों को सुनना है जिनके रगों में बाबुल इल्म का खून दौड़ रहा है। उन शहादतों को सुनना है। हजरत कासिम, हजरत अब्बास, हजरत कासिम, बोलो हजरत कासिम। 12 मिनट हो गए, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 2-4-10 मिनट तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए माइको जब फैला बकर जिम्मेदार हम ही बने हैं। ये मेरी मोहब्बत है, इन लोगों की मोहब्बत है कि अपनी मर्जी से बढ़ाने की कह रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो 11 में ही सिमेट कर रखेगा। समझ गए? और आप सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं। नहीं सुनते तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज भी कहीं गए थे तकरीर कर, उन्होंने किसी ने कहते एकदम ओरिजिनल करबला बोलिएगा, एकदम ओरिजिनल। तो बैठे माइक पे तो उन्होंने कहा ओरिजिनल तकरीर यही है कि यजीद था हुसैन है। सलाम पढ़ लीजिए भाई, कई घंटे की तकरीर हो गई। यजीद था हुसैन है, तकरीर हो गई, सलाम। अरे हुजूर ये क्या हुआ? कहते तुम ही तो बोले हो, इन्हीं दो जुलूम में तो सब कुछ है। यजीद था हुसैन है, बात खत्म। बोलिए जरा या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। आपको ये मालूम है ये बहुत छोटे थे अभी कासिम, इमाम हुसैन को जहर देकर के शहीद कर दिया गया। यह वाकया आप लोगों ने सुना होगा। माँ के साये में आपकी जिंदगी पड़ रही है। 9 मुहर्रमुल हराम गुजर चुका है, यौम आशूरा की रात है। बार बार आका हुसैन के पास कासिम जा रहे हैं, जैसे सबक सबको पढ़ा रहे हैं, काश भतीजे को भी पढ़ा देते हैं। मगर 10वीं मुहर्रम को सारी उम्मत जुम्मा पढ़ रही है, मगर वहर आले रसूल वजू लहू से करके सजदे मोहब्बत अदा हो रही है। सुबह से की हजरत कासिम इमाम हुसैन के पीछे पीछे लगे, कुछ कह नहीं पा रहे। जब कह नहीं पा रहे हैं तो चूंकि शफकत थी ना आपके पेशानी में, मेरा भतीजा यतीम है, कहीं बाप की याद ना आ जाए, तो मुड़ के भी नहीं देखते थे कहीं भाई की याद ना आ जाए। आज मंजर क़यामत की है। एक लम्हे में कहा था कासिम ने, चचा गुस्ताखी हुई है क्या? बात तो बात मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। तो हजरत कासिम ने कहा था, हजरत इमाम हुसैन ने, भतीजे मैं जानता हूं कितने सवाल तेरे लब पे आके खड़े हैं, कितने सवाल तेरे लब पे खड़े हैं, ये मैं जानता हूं। और तुम कहना क्या चाहते हो ये भी मैं जानता हूं, इसलिए मैं अपने रुख को तेरे तरफ नहीं कर रहा हूं। हजरात, जब ये बात कही इमाम हुसैन ने तो फौरन अपनी बीवी, अपनी बेवा माँ के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, अम्मी काश अबू होते ना तो आज किसी के पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अबू का जाने का एहसास इस करियल कासिम को हो रहा है, करियल जवानी में। कहा क्या हुआ? कहा चचा से मैंने कहा भी, एक तो अपनी मेरे तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, मगर मैंने कहा भी तो कह के गए कि चल जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। जब इतना कहा, कासिम ने बैठ कर पेवा, एक औरत और सुहाग जिनका लुट चुका है, जहर देकर जिनके शौहर को लुटा गया था,
ایک طرف ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور ایک طرف جوان بیٹا رونے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بیوی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا، جب کوئی غم آتا تو شوہر کو یاد کر کے کس طرح پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ خیمہ رسول میں ایسے عالم میں امام حسن کو یاد کر کے ایک طرف بیٹا ایک طرف بیوی رو رہی ہے۔ رونے کی آواز جب ام رباب حضرت زینب نے سنا خیمے کے اندر، کہتی ہیں رو کیوں رہے ہیں دونوں؟ کہا اس لیے رو رہے ہوں کہ آج میرا شوہر ہوتا تو میرا بیٹا بھی آج دولہا بن کے میدان میں نکل چلا ہوتا، مگر امام حسین ہے کہ اجازت نہیں دیتے۔ ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ آقا حسن آ کے کہہ لگے ہیں میں نے کچھ وصیت کی تھی۔ یاد آ گئی امام حسن کی وصیت۔ 4 سال کی عمر تھی حضرت قاسم کی، تو 4 ہی سال کی عمر میں طویل ڈالی تھی اور کہا تھا بی بی اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں کوئی بڑی مصیبت آوے تو قاسم کے تعویذ کو تم پڑھ لینا۔ فوراً قریب بلاتی ہیں، بلانے کے بعد کہتی بیٹا راؤ، تعویذ لیتی ہیں، کھولتی ہیں، لکھا تھا میری بیوی اگر میرے بھائی حسین پہ بڑی مصیبت آ جائے تو میرے بھائی حسین کی حفاظت میں میرے بیٹے قاسم کو آگے کھڑا کر دینا۔ فوراً کاغذ لیتی ہے، کہتی ہے بیٹے آپ مسکرا دو تو صحیح۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہا کیا ہوا امی جان؟ کہا کسی نے اجازت دے دی ہے کیا؟ کہا اجازت نہیں دی ہے، یہ تو سند بہت پہلے 4 سال کی عمر میں تیرے بابا نے دے دی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن پہ لگی تھی، چلو اب یہی سند کافی ہے کربلا میں جانے کے لیے۔ جا کے کہتے ہیں، کہتی ہیں کہ اے امام حسین سنیے سگی، یہ آپ کا بھائی کا دیا ہوا خط ہے، کیا یہ کسی سند سے کم ہے؟ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آقا حسین روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، آقا حسین روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ بھائی نے اب وصیت کی ہے اب انکار کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا میرے طرف سے اجازت ہے۔ کتنی بڑا جگر رکھتی ہے قاسم کی ماں۔ ایک تو دنیا ہی میں جو ہے جوانی کے عالم میں حضرت حسن کی شہادت ہو چکی تھی، اے لوگوں گھر کے اندر لی جاتی ہیں، کنگھی ہے، بال جھاڑ رہی ہے جوان بیٹے کی، ان کو معلوم ہے کہ میدان میں جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ ایک بڑھاپے کا سہارا جو تھا اس کے سر پہ امامہ خود اپنی جان تیار کر رہی ہیں، اے لوگوں کنگھی لگا رہی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کر رہی ہیں۔ اس وقت جگر پہ کیا گزر رہا ہوگا آپ کی امی کی، اے لوگوں جب اس امید کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں میرا بیٹا جا رہا ہے قربان ہو جائے گا اور میرا چراغ بجھنے والا ہے اور بڑھاپے کا سہارا لٹنے والا ہے، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے بیٹے قاسم تم وعدہ کرو کہ جس محنت سے بڑی پالی تھی تیرے بابا حسن نے، کیا ان کے دیے ہوئے حوصلے کو بلند کرو گے کہ نہیں بلند کرو گے؟ آپ نے کہا تھا بالکل امی میں بلند کروں گا۔ ذرا میری پھوپھی زینب کو بلا لیا جائے۔ حضرت زینب کو بلا لیا گیا، پھوپھی زینب کے ہاتھوں کو تھام کر ایک یتیم جوان کریل میں جوان یتیم بھتیجا ہے، تھام کے جیسے ہی پوسا دیا ہے لوگوں، فوراً حضرت قاسم کو پسانی کو زینب نے چھوما ہے اور دونوں گلے مل کے جب رونے لگے ہیں۔ ایک عجیب منظر تھا خیمے کے اندر، ایک طرف امی جان رو رہی ہے، ایک طرف زینب رو رہی ہے، ایک طرف قاسم رو رہے ہیں۔ امام حسین نے جب دیکھا تو سب پہ ہاتھ رکھ کے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ یہ کیسی قیامت ہے نانا، یہ کیسی قیامت ہے نانا، اس قیامت کو لانے والے نانا تیرے ہی کلمہ پڑھتے ہیں نانا۔ دیکھو تو سگی، ایک طرف زینب ہے، بھتیجے کے سر کو اپنے کندھے پر رکھی ہے، کہتی ہے سہارا ہو سہارا ہو سہارا ہو۔ اے میرے بھتیجے قاسم اپنے یتیمی کا خیال نہ کرنا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے، جو اپنی امی جان کی لہو کی لاج بچا لے، اپنے باپ حسن کی شہادت کی لاج بچا لے۔ کریل جوان ہے لوگوں، گھوڑے پہ چڑھا ہے، گھوڑے پہ چڑھ کر کے ایڑ لگائی ہے، لگانے کے بعد ہے لوگوں میدان میں گئے گئے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ حضرت قاسم پہ وار نہیں ہو رہا ہے، حضرت قاسم کو قریب بلایا گیا، اے قاسم تم یتیم ہو واپس چلے جاؤ، اے قاسم جا کے اپنے چچا سے کہہ دینا ہم پلٹ کے نہیں آئے گئے، ہم کو یزیدیوں نے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جواب سنیے اور حوصلہ دیا ہو رب تو زبان کھولیے گا۔ آپ نے کہا تھا تم نے ابھی کہا ہے کہ جا کے کہہ دے
देना, यजीदियों ने माफ कर दिया है और तुम अपनी जान बचा लो। अबे नादानो, कासिम हो, कासिम हो, कासिम हो, कासिम हो। मेरे बाप का नाम हसन है और हसन का बेटा हो। आज मैदान करबला में मैं वापस होने नहीं आया हूँ, शरीयत की कश्ती को बढ़ाने आया हूँ। आज तबीयत को बचाने नहीं, आज नाना की शरीयत को बचाने आया। करो तो सही डटा है कासिम। इब्न साद ने कहा साहब ये मुल्क शाम का बहुत बड़ा पहलवान था। क्या था? मुल्क शाम का बोलिए बहुत बड़ा पहलवान था, ये नामी गरामी पहलवान था। इब्न साद ने कहा साहब डट गया, जा। उसने कहा क्या तुम चाहते हो मेरी बेइज्जती हो जाए? ऐसे तैसे जवानों से मैं लड़ूंगा? मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे हमारे पहलवान हैं। पहले बेटे को भेजा, कासिम ने कहा आ गए तिनका बनकर, आ गए तिनका बनकर। पहलवान के बेटे ने जब तलवार चलाई, हजरत कासिम धीरे से सर ऐसे कर लिए, तलवार खाली चली। ऐसी तलवार मारी है अली के पोते ने कि उस शामी पहलवान के बेटे का सर कलम हो गया। आवाज दिया साहब और भी कोई बेटा है। दूसरा गया, उसको भी मार गिराया। तीसरा गया, उसको भी मार गिराया। चौथा गया, उसको भी मार गिराया है कासिम ने। आजत इमाम हसन के बेटे ने जरा देखो तो सही, मगर असल से ही आपके भी मुकद्दर में शहादत का जाम लिखा था। जब ये मंजर देखा इब्न साद ने तो अरजब से कहा क्या तुम जाओगे? कहा जब 4 को मार सकता है तो एक अरजब को क्यों नहीं मार सकता है? एक फैसला लेता है सब मिल करके, कई लोगों एक बार ही कासिम को घेरा जाए। चारों तरफ घोड़ों से घेर लिया गया, तीरों की बरसात चली है। क्योंकि मैदान करबला में भी लोगों आपकी शादी हजरत सकीना से गालबन तय हो चुकी थी। अनकरीब था कि आपकी शादी होती और शादी में शहनाई बजने वाली थी, मगर ऐसी तलवार खनकी कि हजरत कासिम समझ गए और मेरी बारात की शहनाई बज रही है। अब ये शहनाई बता रही है ए कासिम अब तेरी बारात जन्नत की तरफ जाने वाली है। अब तेरी बारात जो है अब मौजे कौसर पे नाना से मिलने वाली है। लिहाजा एक बार ही कासिम पर हमला हुआ है। कासिम जमीन पे गिरते हैं और गिरने के बाद आवाज लगाई जाती है हुसैन 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 हुसैन, आओ अपने भतीजे की लाश ली जाओ। आज एक जवान पिपरा कनक के सरजमीन पर अल्लाह न करे, सारे नौजवान को अल्लाह उन्हें खींच रता फरमाए। मगर ऐसा मौका आपने देखा होगा जब एक जवान जाता है इलाके का चूल्हा बंद हो जाता है, पूरा इलाका मिलकर जनाजा सजी से रखे उठा पाता, रूह कांप जाती है। मगर कितने जनाजे तन्हा उठाए थे आका हुसैन ने। अब यतीम भतीजे की बारी है। हजरत कासिम को आपने अपने कंधे पे उठाया है, ये जाने के बाद अपने अम्मी के करीब रखा है। ये तेरे शहीद बेटा कासिम की लाश है। माँ है आपको अपने गोद में रखती है और जो गर्दे गुबार लगे थे आप अपने हल्के हाथों से साफ कर लगी है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है कासिम का। माँ बार बार देख के कहती है ए बेटा तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया, कल कयामत में जब नेता देने वाला ये नेता देगा। इस शहीदों की माएँ आए, वो खुदा की कसम इंशाअल्लाह उन शहीदों की माओ के सब में तेरी माँ भी जाएगी। इसमें हमारी मेहनत लगी है, मेरे खून का कमाल है बेटे, तेरी बहादुरी का कमाल है। एक शहीद की माँ कहलाऊंगी, क्या फला की बीबी एक शहीद की माँ है। आपने भी शहादत की जाम पी ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत के बाद एक एक बार दिगरे शहादत आले रसूल की होती चली जा रही है, जानेसारों की होती चली जा रही है। आखिरी लम्हा है, खेमे के अंदर है हजरत अब्बास। हजरत अब्बास खेमे के अंदर जाते हैं और जाने के बाद है लोगों हजरत सकीना से खैरियत पूछते हैं। हजरत ज़ैनब हजरत अली अस्कर को खिलाते हैं और खिलाने के बाद सकीना से पूछते हैं सकीना देखती थी तो चाचा को मुस्कुराती थी, जरा एक मर्तबा मुस्कुराओ तो सही। कहती है चाचा अभी मेरा दिल मुस्कुरा रहा है, मगर प्यास इतनी तेज लगी है चाचा
चचा, मुस्कुराने की तबीयत नहीं करती, मेरी हिम्मत टूट गई है चचा। ये चचा, मदीने में जो भी आरज़ू करती थी तुम हमारे आरज़ू को फौरन पूरा करते थे। मक्के में मेरी आरज़ू को तूने पूरा किया है, लेकिन यहाँ 3 दिन से पानी तेरी भतीजी को नहीं मिल पा रहा है। ये चचा, आखिरी आरज़ू ये है, काश भतीजी को तू पानी पिला देता और यसगर को तू पानी पिला देता, मेरी फूफी ज़ैनब को पानी पिला देता। लाशों की ढेर है, जहाँ पे चील और कौवे पानी तो पी रखे हैं, जंगल के जानवर पानी तो पी रखे हैं, मगर ऐसी सूरत पर आले रसूल पानी के बगैर जो है उनके लब सूखे हुए हैं। आपको रहा ना गया, क्योंकि अली का खून दौड़ रहा था ना हज़रत अब्बास के रगों में। आप कहते हैं ना घबरा हो सकी, आपने मस्कीजा उठाया है, उठाने के बाद म्यान से तलवार निकाली है, और जैसे ही घोड़े पे आप सवार हुए हैं तो सकीना खेमा से बाहर आती है और आके कहती है, ए चचा अपना हाथ जरा नीचे करो तो सकी। हज़रत अब्बास ने हाथ नीचा किया है और चूमा भी है, चुमने के बाद हाथ पकड़ के कहती है, ए चचा जरा सही वादा तो करो सकी, क्या वाकई तुम पानी पिलाओगे? जुमले पे आपको गौर करना पड़ेगा, सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या मिल रहा है। हाथ थामी है सकीना, ए चचा क्या वाकई भतीजी को पानी पिला दोगे? तो आपने कहा था, सुन मेरी भतीजी, अब मेरा ये वादा है, अगर पानी नहीं आया तो अब्बास भी खेमे में नहीं आएगा, और अब्बास आ गया तो अपनी भतीजी को पानी जरूर पिलाएगा। कितना सेठ के साथ आपने जवाब दिया था। हजरत, अगर ये वादा कर लिए होते कि नहीं पिलाही के दम लेंगे तो मसला कहीं और चला जाता। दुनिया कहती है कि अगर आले रसूल को सब कुछ मालूम था तो अब्बास ने अपने वादा को क्यों नहीं पूरा किया? है अब्बास ने कहा था, ए सकीना, ये वादा लेता हूँ कि अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर तेरा पानी नहीं आया तो अब्बास भी पलट करके नहीं आएगा। इमाम हुसैन ने आपकी तैयारी को जब देखा है तो देखने के बाद आए लोगों, आप कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ सकीना के लिए पानी लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ सकीना के लिए पानी लेने जा रहे हैं। कहाँ हजारों का फौज जो है वहाँ पे मौत बन के खड़ा है, तुम ना जाओ, सब एक एक करके साथ छोड़ करके चले गए। कमर की ताकत अब्बास हो तुम मेरे, एक आसी अब्बास तुम मुझे छोड़ करके ना जाओ, ए अब्बास तनहा करके मुझे ना जाओ। आप अंदाजा करो सही, मौलाना अज़ीमुल्लाह, मौलाना साकी साहब, ये दोनों भाई हो और एक मैदान में जा रहे हो जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, सारे सहारे टूट गए हो, और इसमें से भी एक साथी निकल के कहीं जाए तो जो रहेगा वो कहेगा, ए मौलाना मुझे किसके सहारा छोड़ के जा रहे हो? जब घर की याद आती है तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ, जब भाइयों की याद आती है तो तुम्हें देख लेता हूँ, बेटों की याद आती है तुम्हें देख लेता हूँ। वो कैसा मंजर रहा होगा, गाजी के सामने हुसैन की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही होंगी, और ऐसी सूरत पर हज़रत अब्बास ने कहा था, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, भैया घबराइए नहीं। आपने इमाम हुसैन ने कहा, काम कर, पानी के लिए जा रहा है तो तलवार म्यान में रख ले, वरना आने वाले वक्त में मौलिक ये लिखेगा कि अब्बास पानी के लिए चले थे तो तलवार के जोर पे चले थे। म्यान में रख ले। कहा भाई म्यान में रख लूं? कहा हाँ, ताकि दुनिया समझ जाए कि अपने पावर के बुनियाद पे आबाद चले थे, वरना अगर तलवार लहराते हुए गए तो दुनिया कहेगी इनके तलवार की वजह से ये पहुंच गए थे फुरात के करीब। तारीख दूसरी तरह लिखी जाएगी। और आले रसूल तलवार के भरोसे नहीं, ये तो लकड़ी के तलवार बना देते हैं। इनके नाना को ये पावर है, ये लकड़ी को तलवार बना देते हैं। म्यान में रखी हज़रत अब्बास ने, एड़ लगाई घोड़े को। एड़ लगाने के बाद कहते हैं, यजीदियो मौत बन के खड़े हो। ही गाजी निकला, गाजी निकला। रास्ते में सबसे पहले रोकने के लिए अगर कोई मिला था तो आपके फूफीजाद एक भाई था। कहा भैया ठहरो गाजी, ठहरो। कहा क्या हुआ? कहा सब इनका प्लान मुझे मालूम है, पलट जाओ गाजी। अगर जामीन की तरफ है तो क्या हुआ, मगर अभी प्यार जिंदा है, पलट जाओ। कहा क्या हुआ? कहा मुझे प्लान मालूम है, जैसे ही पानी लेके पलटोगे ना तुम पे ऐसा हमला होगा कि हुसैन की कमर टूट जाएगी, हुसैन की कमर टूट जाएगी। मगर चूंकि गाजी थी ना। कहा तुमने अपनी तकरीर बंद कर ली? कहा हाँ मैंने तकरीर बंद कर ली। कहा मेरी तकरीर सुन। उनके तकरीर का माहसल ये था कि मारे दे हक बात के आगे, बुलंद आवाज से बोलिए ना, कल दूसरे लोग आएंगे फिर मैं अगले साल मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा।
مرد حق باتی کے آگے اج مات کھا سکے تھے نہیں، اج سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن غازی چلے آنے رفورات کے کنارے، اور جب غازی چلا ہے تو سب سے پہلے مس کیجئے میں آپ نے سکینہ کے لیے پانی دیا ہے، پھر آپ نے سوچا ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں پانی پی لوں، جیسے کہ چولہے میں غازی نے پانی کو اٹھایا ہے، سکینہ کا وعدہ یاد آ گیا، آپ نے خوراک کا پانی خوراک کے اندر ڈال دیا، آپ کا وفادار گھوڑا تھا ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہے، جیسا لگتا تھا کوئی استاد کھڑا ہو اور شاگرد بالکل باادب کھڑا ہو، کتنا وفادار تھا گھوڑا، ایک پپرا کلر کے سرزمین پر جلسہ شہید اعظم میں آنے والوں، میرے وفادار بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کرو، جب حسین کے خیمے میں رہنے والا ایک گھوڑا جب اتنا وفادار ہو سکتا ہے تو حسین کا بیٹا کتنا وفادار ہوگا؟ حسین کا بیٹا کتنا وفادار ہوگا؟ آپ نے گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا خاموش، پانی پی لے، تو بھی پیاسا ہے نا، پانی پی لے، خاموش ہے گھوڑا، پانی پی لے، خاموش ہے، وقت نہیں ہے گھوڑا، تمہارے سینے پہ سوار ہو کے غازی کو جانا ہے پانی لے کے، تو پی لے، اس لیے کہ یزیدیوں کو کچلتے ہوئے سکینہ کا پانی لے کے جانا ہے، تمہیں چھلانگ بھی لگانی ہے، بجلی کی طرح اڑنا بھی ہے، تو پی لے۔ تیسری مرتبہ میں جب سختی سے کہا تھا اس وفاداری کو ضرور سنیے گا اور اس پہ عمل ضرور کیجیے گا، دو مرتبہ کہا پانی سے لب لگانے کے لیے گھوڑا تیار نہیں ہے، تیسری مرتبہ بڑی سختی سے کہا تھا یہ گھوڑا یہاں موت سامنے آئے، اتنا کہا وقت ہے، اتنا کہا لمحہ ہے کہ بار بار میں کہوں، مگر کتنا وفادار تھا گھوڑا، سر ہلایا تھا اور غازی کی طرف کر کے آنکھیں رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے غازی میں حسینی ہوں یزیدی نہیں ہوں، جو وعدہ آپ سکینہ سے لے رکھے تھے ہمارے بھی سینے پہ تو آپ سوار تھے، میں بھی سن رہا تھا، وعدہ میں بھی لے رہا تھا، خدا کی قسم جب تک سکینہ کو پانی نہ پلا دیا جائے وفادار گھوڑا بھی پانی نہیں پیے گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہو چکے ہیں، ہم سے بہتر ہے وفادار گھوڑا، کم سے کم قدم حسین میں رہ کر اپنی زندگی تو اس نے بنا لی، آج تاریخ میں اس کا نام لیا جاتا ہے، بہرحال غازی آگے بڑھے ہیں، بڑھنے کے بعد جب آگے بڑھے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر حملہ کامیاب نہیں ہوتا، یزیدیوں نے کہا پانی لے کے چلا گیا تو خاتمہ کا ذریعہ بن جائے گا، ایک بار ہی حملہ کرو تو سگی، ایک بار ہی حملہ کرو تو سگی، پیچھے سے ایک تیر آئی ہے، آقا عباس کے بازو پہ لگی ہے، اس بازو پہ جس میں آپ نے مسکیجہ لیا تھا وہ بازو کٹ کے زمین پہ آیا ہے، دوسرے بازو میں آپ نے مسکیجہ کو تھام لیا ہے، اے لوگوں آواز دیتے ہیں سکینہ، ایک بازو تو گر گیا ہے پر پانی کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، آگے سے بھی تیر آتی ہے، دوسرا بازو بھی شہید ہوتا ہے، اے لوگوں پانی کو آپ نے دانت میں پکڑ لیا تھا مسکیجہ کو، سکینہ 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 وعدہ تیرا انشاءاللہ پورا کروں گا، اے سکینہ جب تک سامنے سے ایسی تیر آئی، مسکیجے پہ تیر لگی ہے، جب پانی گرا ہے زمین کے اوپر، ایک بات پھری ہے، عباس نے افسوس افسوس افسوس، شاید سکینہ اب تیرا چچا تجھے پانی نہ پلا سکے گا، اب حضرات زخموں کے تاب نہ لگا، چونکہ پیشانی سے لے کے سینے تک ہر طرف تیر ہی تیر لگی تھی غازی کو، وہ زمین پہ گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے بھائی حسین ذرا آؤ تو سگی، آقا حسین آ رہے ہیں میدان میں، تو پہلا جو بازو شہید ہوا تو اس کو اٹھایا ہے، پھر دوسرے بازو کو اٹھایا ہے، دیکھ رہے ہیں میرا بھائی میرا انتظار کر رہا ہے، جانے کے بعد کہتے ہیں بھائی مجھے طرح چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی، اور میری کمر ٹوٹ گئی، اتنا خیال رکھنا اتنی اللہ سے اٹھائی تھی آقا حسین نے، ایک مرتبہ اٹھایا خیمے میں پہنچا دیا، مگر حضرت عباس ہیں جب آپ کے آگوش میں آپ نے آخری سانس لی تھی اور آپ کے لاش کو اٹھایا تھا آقا حسین نے، پورے راستے میں خیمہ تک جانے میں 3 مرتبہ زمین پہ آپ بیٹھے تھے، افسوس 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 میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، پورا مجمع ان کی شہادت پہ پڑھے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चार शहादतें मैंने आपके सामने दी है, आप खुद फैसला करो कितनी मुशक्कत उठाई है अहले बैत ने। क्या आप इस बात का वादा लेंगे कि कल उर्स इब्राहिम भी है, दूर से शोरा और खुतबा याद रखे हैं? क्या कल के आने वाले खुतबा और शोरा के सामने ये बताएंगे कि यहाँ का कमेटी भी जिंदा है, कराने वाले शहीद आजम भी जिंदा है, और पिपरा कला का एक एक बच्चा हुसैनी जिंदा है? मैं कल आपसे वादा लेना चाहता हूँ, वो जिस ईमानदारी के साथ आज तक आप आते रहे हो, कल आओ ताकि दो हक अदा हो जाए, एक करबला वालों का भी हक अदा हो जाए और गाजी समाहाद इब्राहिम का भी हक अदा हो जाए, इनकी भी रूह खुश हो जाए और करबला वालों की भी रूह। ये बातें जो मैंने आपके सामने पेश की है सब फतेह लसानी की वजह से, अगर कहीं जुमले गलत निकल गए हों मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूं। या अल्लाह करबला वालों के सदके में हमारी खताओं को तू माफ करना। या अल्लाह जितने हवाई हमारे हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुबारकबाद ही आप लोगों के लिए, मौलाना अज़ीमुल्लाह, मौलाना साहिदीन सबके लिए कि आप लोगों ने सुना, इन लोगों ने आप तक हमको पहुंचाया। इन सबों का एहसान रहेगा, आपका भी मेरे ऊपर एहसान रहेगा। आपका छोटा भाई हसन रजा आपसे रुखसत हो रहा है। करबला के जान सारों को सलाम, करबला के जान सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ دعا کے لیے اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ اس پاکیزہ محفل کو تو قبول فرما لے، مولا کہیں سے خطا واقع ہو گئی ہو حبیبوں کے صدقے میں معاف فرما دے۔ مولا اسٹیج سے لے کر نیچے تک جتنے سامعین حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا خصوصیت کے ساتھ اس علاقے میں جتنے بزرگان دین اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی روح کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی کربلا والوں کا فیضان پپرا کنا کے علاقے پہ نازل فرما دے۔ مولا یہاں کے دین و سنیت کی حفاظت فرما، مولا بدعقیدوں سے محفوظ فرما دے، مولا صلح کلیت سے محفوظ فرما دے، مولا اعلیٰ حضرت کا فیضان کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ابھی کربلا کا بیان مکمل ہوا نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو باقی ہیں یہ کل ہوگی۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور بعد کربلا یہ ساری واقعات کل مکمل کی جائے گی۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ شاعر